Good morning, dear students. The chapter 2, including the story titled The Thief's Story, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson has been taken from the supplementary reader named Footprints Without Feet for the students of class 10. This story tells us that no one is born victim, criminal. The circumstances and the society makes him so. The basic goodness of such a person could be revived if the right atmosphere is provided. In the thief's story, Hari Singh, a professional thief, tried to rob his master Anil, but he can't. Anil is a caring, kind-hearted and trusting person who teaches him to how to read and write. Hari could not betray the trust of such a nice person, so he restores the stolen money and returns to Anil to become an educated, respectable gentleman. Now I try to make you understand in your mother tongue and start explaining this lesson. प्यारे बच्चों, यह कहानी जिसका शीर्षक द थीफ्स स्टोरी है, तो यह कहानी सप्लीमेंट्री रीडर द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक किताब से ली गई है, वो भी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। यह कहानी हमें बतलाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, अपराधी नहीं होता, चोर नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां व समाज उसे ऐसा बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति की मूल अच्छाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है यदि उसे सही वातावरण प्रदान किया जाए तो द थीव्स ऑफ स्टोरी, इस कहानी में हरि सिंह एक जिसका व्यवसाय चोरी है अपने मालिक अनिल को लूटने का प्रयास करता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता है। अनिल बहुत ख्याल रखने वाला, दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो हरि सिंह को लिखना पढ़ना भी सिखलाता है। तो ऐसे अच्छे इंसान के विश्वास को हरि सिंह धोखा तो नहीं दे पाता, वरन वह चुराए हुए धन को वापस उसी स्थान पर रख देता है और अनिल के पास वापस आ जाता है, क्योंकि वह एक सम्मानित शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता है। तो सम्मानित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति बनने की खातिर वह अनिल के पास लौट कर के आ जाता है। अब मैं आपकी मातृभाषा में इस लेसन को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अ यंग बॉय मेक्स ए फ्रेंड्स विद अनिल। Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक बालक, 15-16 वर्षीय बालक अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करता है और उसे नियुक्त कर लेता है, रख लेता है। क्या वह लड़का अनिल का विश्वासघात करता है या धोखा देता है?
So I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So, do you? He replied, which put me off for a moment because of the time, because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. जब मैं अनिल से मिला था उस वक्त मैं तब भी चोर था। हालांकि मैं मात्र 15 वर्ष का था, लेकिन मैं एक अनुभवी लड़का था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और चोरी करने में, लूटने में मेरा सफल हाथ था, मेरा अनुभव था, सफल हाथ था मेरा। तो अनिल एक कुश्ती मैच देख रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा था तो वह कुश्ती देख रहा था। कुश्ती जब वह अनिल 25 वर्षीय व्यक्ति था। वो एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ही ईजी गोइंग, बेपरवाह व्यक्ति दिखता था। बहुत ही दयालु और सीधा साधा व्यक्ति दिखता था, जो मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी था। इसका सीधापन, उसकी सरलता मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी थी। तो आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लाइफ। इधर कुछ दिनों से मेरा भाग्य तो साथ, मेरी किस्मत साथ है, नहीं दे रही थी। मेरा कुछ ज़्यादा सौभाग्य नहीं रहा था कुछ दिनों से। और मैं सोचता था कि मैं इस आदमी के विश्वास में प्रवेश कर सकता हूँ, यानी इस आदमी के विश्वास को मैं जीत सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि थोड़ी सी चापलूसी करने से मित्रता बनाने में सहायता मिलती है। तो थोड़ी सी चापलूसी मित्रता बनाने में मदद करती है। तो ऐसा सोच करके मैंने कहा कि आप थोड़े पहलवान दिखाई पड़ते हैं, रेसलर पहलवान दिखाई पड़ते हैं। तो अनिल ने जवाब दिया कि तुम भी तो पहलवान भी दिखाई पड़ते हो, सो डू यू, तुम भी तो पहलवान ही दिखाई देते हो। इस जवाब ने तो मुझे एक क्षण के लिए तो निरुत्तर कर दिया, चुप कर दिया, क्योंकि उस वक्त मैं भी दुबला पतला था। अच्छा, तो मैं थोड़ा शर्माते हुए कहा कि मैं थोड़ी कुश्ती लड़ लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था, नया नाम धारण कर लेता था। यह नया नाम मुझे पुलिस और अपने पूर्व के नियोक्ता या मालिक से आगे रहने में मदद करता था। मैं इस नाम से मैं आगे रहता था, यानी अपने पूर्व के मालिक और पुलिस से मैं बचते रहता था नया नाम रख करके। इस परिचय के बाद अनिल
ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की जो गुर्रा रहे थे, अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर फेंक रहे थे। तो मेरे पास तो कहने के लिए ज़्यादा तो बात थी नहीं, कोई ज़्यादा शब्द तो थे नहीं। तो अनिल चल पड़ा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, यूं ही चल दिया। तो अनिल ने कहा कि फिर तुम आए तो आएगी। तो मैंने सबसे अधिक आकर्षक ढंग से इसके ऊपर मुस्कुरा दिया, कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने कहा। तो लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई वेतन भी नहीं दे सकता हूँ इसके बदले में। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. तो एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि शायद मैंने अपने आदमी को मैंने गलत पहचान लिया है या गलत आकलन किया है। जो मैंने सोचा था कहीं यह आदमी शायद लगता है कि गलत है, गलत आकलन किया कि यह धनी है। तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खिला भी नहीं सकते हो? तो क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैं बना सकता हूँ, मैंने फिर झूठ बोला। तो यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो he took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तो अनिल यमुना मिठाई की दुकान के ऊपर स्थित अपने रूम में मुझे ले गया और मुझे कहा कि मैं छज्जे के नीचे मैं सो सकता हूँ, मुझे छज्जे के नीचे सोने के लिए कहा। लेकिन वो भोजन जो मैंने उस रात बनाया था वह बहुत ही भयंकर रूप से ख़राब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने गली में घूमने वाले कुत्ते को यह भोजन दे दिया था और मुझे यहाँ से निकल जाने को लिए कहा, यहाँ से गेट आउट। लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा और बड़े ही आकर्षक ढंग से मुस्कुराता रहा। तो अनिल को भी हंसी आ गई। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में अनिल ने मेरे सिर को थपथपाया प्यार से और कहा कि इसे बुरा मत मानना, कभी नहीं मानना, मैं तुझे खाना बनाना सिखला दूंगा। और उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखलाया और कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हें पूरा सेंटेंस और हिसाब जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना सिखला दूंगा। मैं तो आभारी हो गया। मैं जानता था कि एक बार मैं शिक्षित आदमी की तरह अगर लिख सकूंगा तो जो मैं उपलब्धि हासिल करूंगा उस उपलब्धि की कोई सीमा नहीं होगी। It was quite a pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल के लिए काम करने में तो मज़ा आता था, खुशी होती थी।
मैं सुबह में अनिल चाय बनाता था और दिन भर का सामान खरीद खरीद करके समय अपना लगाता था खरीदने में। प्रायः उसे दिन भर में मैं 1 रुपये बना लेता था, 1 रुपये के लाभ अर्जित कर लेता था। मैं सोचता हूँ कि अनिल जानता था कि मैं इस तरह से 1 रुपये बना लेता हूँ, इस बात को वह अनिल जानता था, लेकिन लगता था कि वह इसे बुरा नहीं लगता था। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines a queer way to make a living. तो अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था, यानी नियमित रूप से वह पैसे नहीं कमाता था। पहले तो एक सप्ताह उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उस उधार की चुकौती कर देता था, और वह अपने अगले चेक के लिए चिंता करता रहता था। लेकिन ज्यों ही यह चेक पहुंचता था त्यों ही वह बाहर निकल जाता था और उत्सव मनाता था। लगता है कि वह पत्रिका के लिए निबंध वगैरह कुछ लिखता था। तो जीविका कमाने का यह एक कोई वे था, विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him lock the money under the mattress. एक शाम को वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया और कहा कि मैंने प्रकाशक के हाथों एक किताब अभी तुरंत बेची है। रात में मैंने वह नोट गद्दे के नीचे अनिल को रखते हुए देखा था। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. लगभग 1 महीने से अनिल के लिए मैं काम कर रहा था और शॉपिंग ऑन द शॉप, मैंने काम यानी सामान खरीदने के वक्त कुछ इधर उधर पैसे 1 रुपये बचाने के अलावा मैंने अपने लाइन का काम, अपने चोरी का काम मैंने, या धोखा देने का काम, लूटने का काम मैंने, लूटने जैसा कोई काम मैंने नहीं किया था अनिल के यहाँ। और ऐसा करने का अवसर, हर अवसर मेरे पास था। अनिल ने तो दरवाजे की चाबी मुझे दे रखी थी और मैं जब चाहता तब मैं अंदर आता था और बाहर जाता था। तो अनिल सबसे अधिक भरोसा करने वाला व्यक्ति था जो मुझे वह मिला था। And that's why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यही कारण है कि मैं अनिल को लूटना मुश्किल था, और लोभी आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। एक बेपरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल है, कठिन है। कभी कभी तो वह ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है, और जब ध्यान नहीं देता है कि लूट लिया गया है तो चोरी जैसे काम करने का, लूटने जैसे काम करने का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तब तो यह सारा मज़ा ही ले लेता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it
on his friends. After all, he doesn't even pay me. और इस समय मैंने कुछ वास्तविक काम किया है। मैंने अपने आप से कहा, लेकिन आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आजकल तो मेरा अभ्यास छूटा हुआ है, टूटा हुआ। मैंने आजकल मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ चोरी करने का। मेरा अभ्यास छूट गया है। लेकिन अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ इससे, तो यह अपने मित्रों के ऊपर पैसा बर्बाद कर देगा। आखिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। नाउ आई ट्राई to satisfy you by answering this question in comprehension check. Comprehension oral check. How does the thief think Anil will react? Those questions belong to next section. Who does I refer to in this story? I in this story is Hari, a young boy who is a thief. What is he a fairly successful hand at? He has been a fairly successful hand in deceiving and stealing money of his masters and not being caught so far. What does he get from Anil in return for his work? He gets food and accommodation in return for his work. Anil also teaches him how to write names and numbers.